اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد حامد اور میرے اسکول اسلام آباد کیمپس میں فاؤنڈیشن لیول کا اسٹوڈنٹ ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ مجھے بے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آتے ہیں. آج بھی میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ جن کا نام حسن خمن ہے. آج ہم ان سے چند سوالات کریں گے ان کی لائف جرنی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. آپ سنائیں. جی الحمد للہ میں بھی ٹھیک. آپ کو چھوٹا سا انٹروڈکشن کروا دیں جو آپ کو نہیں جانتا وہ آپ کو جان سکیں. جی میرا نام محمد احسان ہے. میرے فادر کا نام خالد صاحب ہے اور میں کبوٹا میں رہتا ہوں. جی آپ کی سمجھ نہیں آئی, آپ دوبارہ بول سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں میرا نام محمد حسان ہے. میرے والد صاحب کا نام عطاء الرحمان ہے اور میں کبوٹا سے آیا ہوں. اچھا آپ کوئٹہ سے ہیں, کوئٹہ سے آئے ہیں آپ کے سمجھ گئے. جی بھائی میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کون سی سٹی میں رہتے ہیں, کوئٹہ میں رہتے ہیں کوئٹہ میں رہتے ہیں. آپ کو صحیح طرح پہلے سمجھ نہیں آئی تھی. میں کہہ رہا ہوں میں کہوٹا میں رہتا ہوں. کہوٹا. اچھا اچھا کوئٹہ. یہ کوئٹہ کون سی جگہ پہ ہے؟ یہ کہوٹا آپ کاگ پل سے نیچے اتریں گے وہاں سے آگے آتا ہے پھاٹک آتا ہے. پھاٹک کے بعد چیک پوسٹ آتے ہے, اس سے آگے جا کے آتے ہیں. پھر آپ نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ آپ ریحان اسکول میں کتنی دیر ہو چکی ہے؟ مجھے ریحان اسکول میں آئے ہوئے 1 منتھ سے زیادہ ہو چکا ہے. اوکے, آپ نے ان 1 منتھ میں کیا کچھ سیکھ لیا ہے؟ میں نے اس 1 منتھ میں اسٹوری پوسٹ کرنا سیکھی ہے. آپ نے صرف 1 منتھ میں صرف اسٹوری پوسٹ کرنا سیکھی ہے. میں نے 1 منتھ میں پوری فاؤنڈیشن لیول سیکھ لی تھی, لیکن جب بچہ آتا ہے نا اسے ترتیب سے کام کروایا جاتا ہے. میں نے کوڈنگ کی تب ایک بک کمپلیٹ بھی کر لی تھی 1 مہینے کے اندر, اور کینوا پوسٹ اسٹوری پوسٹ بھی اچھا. کمپلیٹ کر لی تھی. آپ نے ابھی تک صرف اسٹوری پوسٹ ہی سیکھی ہے, آپ نے کوڈنگ نہیں اسٹوری سیکھی. پوسٹ کوڈنگ نہیں سیکھی میں نے. اسٹوری پوسٹ, کینوا پوسٹ اور سانگ بنانا سیکھا ہے. اس کے علاوہ میں نے اور سیکھا ہے, بس ابھی تک یہی ہے, اور انٹرویو کرنا. اچھا انٹرویو اے آئی سیکشن بھی آپ نے میرے خیال سے سیکھا بھی بولا ہے. آپ کو میرے خیال سے نیند آ رہی ہے. اوکے, میرا آپ سے نیکسٹ کویشچن یہ ہوگا کہ آپ کی ایج کتنی ہے اور آپ کون سی کلاس تک پڑھے ہیں؟ میری ایج ہے کیا نام ہے 17 سال, اور میں جو ہے نا 3 کلاس تک پہلے پڑھا تھا. پھر اس کے بعد حفظ اسٹارٹ کر دیا تھا. پھر اس کے بعد حفظ مکمل ہوا تو اس کے بعد اب میں 9th کے امتحان دیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, لگ بھی رہے ہیں کہ حافظ صاحب ہیں. اوکے, میرا آپ سے نیکسٹ کویشچن یہ ہوگا کہ آپ کے بابا میرے جیسے میں آپ کے بابا کا نام ہے, مجھے لگتا ہے آپ کے بابا بھی وہ حفظ کرواتے ہیں, قاری صاحب ہیں, مطلب حفظ کیا ہوا انہوں نے بھی. جی جی میرے والد صاحب نے حفظ کیے ہوئے اور بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں, حفظ کی کلاس بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں نمازیں بھی پڑھاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے, میں آپ سے نیکسٹ کویشچن یہ ہوگا کہ آپ قرآن پڑھنے کے بعد ابھی بھی پڑھتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جس نے حفظ کر دیا اللہ اللہ کی, اس کے بعد قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا, قرآن پاک کی شکل بھی نہیں دیکھی. آپ کے بابا جو ان سے تھوڑے سخت لہجے سے ہوں گے, کیونکہ آپ جو ان سے قرآن پاک نہیں کھولتے ہوں گے, اس وجہ سے قاری ہوتے ہیں اکثر, میں نے دیکھے. ہاں اکثر تو ہوتے ہیں, لیکن جو ہے نا میرے والد صاحب سکھ تھے تو الحمدللہ روزانہ اسکول سے چھٹی ہو کے گھر آ کے 1 سپارہ 1.5 سپارہ روزانہ پڑھتا ہوں.
माशाल्लाह, मेरे ख्याल से आप 5 वक़्त की नमाज़ी लग रहे हैं, जो उनकी सर पे टोपी ली हुई है। जी, जी। बस ये है कि फजर की अक्सर रह जाती है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसमें बेहतर करने माशाल्लाह, माशाल्लाह। मेरी भी मैं भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि मेरी क्या टोपी रखने की ऊपर आदत नहीं है। फजर की तो सबकी तकरीबन रह जाती है, मेरी भी कभी-कभी रह जाती है, अगर मैं रात को जल्दी सोया करूँ तो। की। वैसे जो है ना ज़्यादा सवाब जो है ना फजर की नमाज़ में है। फजर की नमाज़ जी, में ये जी, जिस्म हम उठता ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जब फजर की नमाज़ होती है तो अल्लाह ताला 7वें आसमान पे होता है। जी, जी। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप जब रेहान स्कूल में आए तो आपको कैसी फीलिंग आई, कैसा लगा? रेहान स्कूल में पहले आया तो मतलब इतना पता नहीं चल रहा था कि कैसा स्कूल है, क्योंकि अभी तो हमने ना उसके बारे में कुछ जाना था ना कुछ। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर मुझे अच्छा लगने लग गया स्कूल। जी, बिल्कुल। और आपकी एज 17 साल है और आपके आपके बाबा की अपनी मस्जिद है, वो किसी मस्जिद में जो उनसे करवाते हैं, पढ़ाते हैं? जी मेरे अब्बू मस्जिद है, उधर ही मुलाजिम है, मतलब बच्चों को हिफ़्ज़ पढ़ाते हैं वो सारा। तो जो अल्लाह ताला ने भी मस्जिद बनाने के लिए वो दौलत अता करे। लेकिन होता है कि कुछ लोग होते हैं जो उनसे है ना वो कर लेते हैं, लेकिन जो तालिब इल्म होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है, लेकिन वो तब भी नहीं मस्जिद बनाते, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो ऐसे करते हैं, लेकिन जब जिसकी जी, मजबूरी और हो तो जाहिर सी बात है, जिसने हिफज किया हो उसकी मजबूरी हो वो बनाए ना मस्जिद अपनी। जी, जी अल्लाह मेरे ताला अब्बू का इंशाल्लाह इरादा है कि इंशाल्लाह अपना मदरसा खोलने का इरादा है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कामयाब करे, आपको भी करे, अल्लाह ताला आपको नेक कामों के अंदर आगे लेके जाए। हम तो शरीफ बच्चे हैं, मुझे ऐसे आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। कि मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी जो सा आपके आप कितने बहन-भाई हैं? हम 4 बहन-भाई हैं। माशाल्लाह, अच्छा। आप सबसे छोटे हैं, सबसे बड़े हैं? मैं दरमियाना हूँ। कितने भाई हैं, कितने बहनें हैं? मेरा एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है और सबसे छोटी बहन है। माशाल्लाह। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो भी रेहान स्कूल के अंदर पढ़ते हैं या आप अकेले पढ़ते हैं? आपकी आवाज़ अटक रही है बहुत ज़्यादा। जी, मैं ये कह रहा हूँ आप सिर्फ़ अकेले रेहान स्कूल में पढ़ते हैं या आपके भाई भी पढ़ते हैं? मैं अकेला रेहान स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा भाई बड़ा भाई जो है आलिम बन रहा है और छोटा भाई भी आलिम ही बन रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपने यानी कि आप होशियार थे, आपने जल्दी कंप्लीट कर लिया। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके कौन-कौन से चैनल बने हुए हैं और आप रेहान स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कैसा स्कूल है? हाँ, मेरे चैनल बने हुए हैं, फ़ेसबुक का बना हुआ है, इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का बना हुआ है, लिंक्डइन का बना हुआ है। और रेहान स्कूल माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कूल है। तो आप भी क्या नाम है अपने बच्चों को विज़िट करवाएँ, खुद भी विज़िट करें, देखें, स्कूल चेक करें, मज़े आए इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप आपकी इस टाइम पे एज है तकरीबन 17 ईयर ओल्ड आपने बताया। आप आगे 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं या 3-4 साल बाद? मैं इंशाल्लाह 10 साल बाद जो है ना ये जितने साल भी आपने बोले तो अपने आप को एक कामयाब इंसान देखना चाहता हूँ, जो हर मामले में जो है ना अपने वालिद साहब का, अपनी वालिदा का जो है ना साथ दे। बिल्कुल, बिल्कुल।
ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा क्योंकि काफ़ी स्कूल के अंदर जो उनसे है ना होते हैं बच्चे, जाहिल जाहिल बच्चे होते हैं, जैसे गालियाँ निकाल रहा था, लेकिन ये है तो काफ़ी गुनाह, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिसे कोई एहसास नहीं होता, गालियाँ निकाल रहा था, बदतमीजी कर रहा था। क्या रेहान स्कूल के अंदर कोई ऐसा सिस्टम है? अब ये तो हर स्कूल में वैसे होता है, लेकिन रेहान स्कूल में अभी तक तो मैंने वैसे नहीं देखा। आगे चेक कर देंगे, देख लेंगे। बिल्कुल, मैं भी रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में पढ़ता हूँ। मुझे तकरीबन 8-10 महीने हो गए, मुझे भी अभी तक कोई ऐसा चीज़ नज़र नहीं आई। मैं जब भी किसी के साथ इंटरव्यू करता हूँ, मैं क्वेश्चन पूछने का मौका लेता हूँ ताकि मेरे से भी क्वेश्चन पूछें और आप जो है ना मेरी भी लाइफ जर्नी के बारे में जान सकें। मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर दें। और तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपकी उम्र कितनी है? कि मेरी उम्र 14 ईयर ओल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि आपने कितना स्कूल पढ़ा है? जी, आपकी समझ नहीं आई, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपने कितनी क्लासें पढ़ी है स्कूल में? जी, मैं 5 कंप्लीट करके इधर यहाँ स्कूल में आ गया था। सही है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन। ओके, नाइस। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप आपके ग्लासेस लगे हुए हैं, क्या ये वैसे लगे हुए हैं आप इससे पहले मोबाइल यूज़ करते थे इसकी वजह से लगे हुए हैं? पढ़ने की वजह से किसी किसी के लग जाते हैं ना। नहीं, हमारा ये है क्योंकि आपने अक्सर हाफिज़ों को देखा होगा, हाफिज़ों की ऐनकें लगी होती है क्योंकि उनका पूरा जो है ना फोकस होता है कुरान पे, ऐसे पढ़ रहे होते हैं ना, तो उनकी अक्सरों की जो है ना नज़रें ख़राब हो जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ाई के अंदर काफ़ी हो जाती हैं, मेरे स्कूल्स के अंदर भी होती हैं, कुरान पाक के अंदर जी, भी होती हैं, मैंने अक्सर बच्चे ऐसे देखे हैं। जी, जी। और और मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम जो है ना मोहम्मद हसन है। ओके, माशाल्लाह, नाइस। आप अपने आप को जो-सा है आपको रेहान स्कूल के अंदर काफ़ी वाला होते हैं, आपने कौन-सा वाला चूज़ किया हुआ है अभी तक? रेहान स्कूल में अभी तक तो मैंने कोई वाला चूज़ नहीं किया। इंशाल्लाह आगे जाके करेंगे वाला चूज़ भी। माशाल्लाह, नहीं, आपका कौन-सा काम जो-सा सबसे फ़ेवरेट है? जी, आपकी आवाज़ नहीं समझ आई। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि रेहान स्कूल के अंदर आपको कौन-सा जो-सा काम है सबसे फ़ेवरेट है, जो आप दिन-रात एक करके जो-सा काम कर सकते हैं, आपको शौक है जिस काम से? मुझे रेहान स्कूल में जो है ना इंटरव्यूज़ करने का शौक है। नहीं, वैसे काम करने का शौक, रेहान स्कूल के बारे टास्क में मैंने पूछ रहा है, बिज़नेस करना या अच्छा, कोई ऐसे वैसे काम करना। वैसे इसके बारे में तो अभी तक मैंने भी नहीं सोचा। लेकिन आपको 1 महीना हो गया, 17 साल आपकी उम्र हो गई है, लेकिन आपने अभी तक ये अपना जो-सा है सोचा ही नहीं है कि मैंने आगे जाके क्या करना है। ये तब आप हाँ, ये तो सोचेंगे। है, आगे जाके तो मैंने क्या नाम है माशाल्लाह नमाज़ें ही पढ़ानी है और आलिम इंशाल्लाह बनेंगे। अगर आप यही सोच के नमाज़ें पढ़ाएँ, फिर आपका इधर आने का फ़ायदा नहीं। अगर आपने नमाज़ें पढ़ानी है, तो आप वैसे भी नहीं, वो पढ़ा सकते हैं। मुझे आपने सवाल किया ना, आप मुझसे पूछते कि आपने आगे जाके मतलब अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है, मेरे को थोड़ा समझ नहीं है। आपने गलत डिप्रेशन, वीडियो वायरल हुई है, सारे चैनल पे जाएँ, कहते हैं डिप्रेशन, वही हिसाब हुआ फिर मेरे ख्याल से आपसे। असल में हम हमारा ये सोने का टाइम आपको पता है, हाफिज जो होते हैं ना वो जल्दी सो जाते हैं, तो वैसे ही बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। सोने का टाइम खुश है। तो अभी मैं खुश। नींद में आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ। माशाल्लाह, थैंक यू, आपने हमारे लिए इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपने आप को
कैसा देखते हैं कि अब मैं रेहान स्कूल में आया था तब कैसा था और रेहान स्कूल आने से पहले कैसा थे? रेहान स्कूल से पहले तो तकरीबन वेला ही बंदा होता है ऐसे था। अभी कुछ पता चलता है कि भाई जी कोई पता लग रहा है कि कोई बंदा आया है। ये पता लग रहा है कि जो है ना वो बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, हाँ जो बिजी बच्चा है, बिजी बच्चा है। हाँ, देखिए लाइफ कि को, काम अपनी लाइफ से को, कहते हैं। जी, अपनी लाइफ को बिजी रखना चाहिए। बिजी रखेंगे आप अपना उतना कामयाब होगे। मैं सारा दिन अब बिजी जी रहता हूँ, सारा दिन कभी जी घर जी। के कामों में, क्योंकि मेरा जो है इधर के दोस्त वगैरह नहीं है, नहीं मैंने इतने खास इधर बनाया है। जो स्कूल में है वो तो है, लेकिन उसके बाद मैं मुझे छुट्टी होती है स्कूल से 2 बजे, मैं 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे आता हूँ। 2 बजे मेरी छुट्टी होती है, फिर उसके बाद जाता हूँ, घर के काम वगैरह होते हैं वो करना है, या अगर काम से फ्री हूँ तो मैंने यहाँ सो जाना है। फिर रात को फिर आपको पता है इस टाइम तक जो हमसे है ना, या कुछ टास्क करने होते हैं, बैठे हैं कुछ थोड़ी देर रेस्ट कर ली हैं, बातें शातें कर ली, कजनों के साथ या दोस्तों के मैसेज आ गए उनके साथ बातें कर लें, ऐसे ही सीन चलता रहता है। बंदे को अपनी लाइफ जो है बिजी रहना पड़ता है। अब ये घंटा कैसे चला गया है, दोस्त के साथ बात हो रही थी, उसके अंदर आपके साथ इंटरव्यू भी हो रहा है, कजन साथ बैठा था, टाइम का पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया। अभी मैंने देखा था 9 बजे, अभी 9 6 10 बजने लगे हैं, टाइम का पता ही नहीं चल रहा। जी आपकी डेली रूटीन कौन सी है, सुबह उठने से लेके रात को सोने वक्त? मेरी सुबह रूटीन है, 5 बजे उठ जाता हूँ। 5 बजे के बाद नमाज पढ़ के फिर इंशाल्लाह फिर हम स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। तकरीबन मैं पहुँच जाता हूँ 8 बजे के करीब। 8 बजे तक मैं स्कूल में होता हूँ। फिर वही वही स्कूल में जो टास्क वगैरह करते हैं सारा कुछ स्कूल के करके तकरीबन मैं चला जाता हूँ 11:30 बजे। फिर 11:30 बजे वहाँ से मैं जाता हूँ फैज़ाबाद, वहाँ पे बस आती है, उस पे बैठते हैं, फिर हम जो है ना घर पहुँच जाते हैं। घर में आके रोटी शोटी खा के फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि कैलूला ज़रूरी है। ठीक है, ये सुन्नत है, आपको भी जी, पता आपकी होगा। समझ नहीं, क्या चीज जरूरी है? ये कैलूला होता है जो दिन के टाइम सोना पड़ता है थोड़ा सा, ये सुन्नत बिल्कुल, है बिल्कुल। नबी। मैं अच्छा, पता है मसला क्या है? मैं जब स्कूल में होता तो मुझे नींद नहीं आती, जब घर में आता हूँ ना, तो पता है घर में थोड़ी-थोड़ी गर्मी होती है, तो ऊपर से पंखा चला आता है। मुझे वाइब आती है गाँव की, मैं गाँव में रहने वाला लड़का हूँ, तो गाँव की वाइब आती है, मैं उधर सो जाता हूँ, मुझे पता भी चलता है, दिमाग के अंदर नींद इतनी भरी होती है। जी, इसीलिए तो ये कैलूला बनाया थे ताकि जो है ना बंदे की नींद पूरी हो सके, फ्रेश हो जाए। बिल्कुल। आपका रेहान स्कूल से लेके आपके जो है क्वार्टर तक कितना सफ़र? मेरे 2 घंटे का सफ़र है। 2 घंटे का, यानी कि आप पहले 2 घंटे से सफ़र करते हैं, फिर जाते वक़्त 2 जी घंटे सफ़र करते हैं। जी जी। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके जो उनसे वालिद साहब का पूरा नाम क्या है? और अपने भाइयों का नाम बता दें। जी, मेरे वालिद साहब का नाम है अताउर रहमान। मेरे बड़े भाई का नाम है मोहम्मद अहमद और मेरे छोटे भाई का नाम है अबू बकर। अब क्या नाम है? अबू बकर, अबू बकर। माशाल्लाह। अच्छा, एहसान जो उनसे मेरे ख्याल से मैंने पहली दफ़ा नाम सुना, या मुझे पहले भी सुना होगा तो मैंने, मुझे याद नहीं है कि एहसान का नाम का मतलब क्या है? और मतलब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हसान नाम है बस। ऐसा एहसान नाम है। अच्छा, अच्छा, किसी स्कूल के अंदर होते हैं, किसी किसी का प्रिंसिपल जो होता है ना, बहुत बोरिंग होता है। क्या आपके रेहान स्कूल के अंदर ऐसा है जिसका प्रिंसिपल हो, बहुत बोरिंग हो, लेकिन वो उतना ही टाइम आपके ऊपर वेस्ट करता रहता है? मेरे को तो नहीं लगा अभी तक कोई बोरिंग। मुझे तो सारे सही लगते हैं। ओके, सर में से या कोई टीचर में से? सारे मेरे साथ ठीक हैं, कोई मतलब बोरिंग नहीं लगता मुझे। ओके, आप हमारे व्यूवर्स को लास्ट एडवाइस क्या देना चाहेंगे? मेरी आपको व्यूअर से यही है कि आप आएँ रेहान स्कूल में विज़िट करें, चेक करें, देखें कैसा है रेहान स्कूल। अपने बच्चों को भी दाखिला करवाएँ।
माशाल्लाह। सो जैसे हमारा आज का इंटरव्यू हमारे फ्रेंड के साथ हसन खामन के साथ, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। मिलता है अगले इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त दीजिए। थैंक यू।